For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Today we have Vijay Sokhi sir with us, the author of Peopleonomics. Thank you so much sir for coming on our show. We are highly grateful कि आप हमारे शो पर आए. Thank you so much, Gaurav. The pleasure is all mine. I hope that the next 20-30 minutes जो हम discussion करेंगे वो काफी interactive हो. Indeed, sir. So, sir, before we get into the podcast and know much more about your book, which is quite interesting from its name itself, so I would request you to please introduce yourself so that our listeners can know much more about you, and please share about the journey of being an author. Okay, thank you, Gaurav. Before I begin, I want to thank you and your entire team for getting me on board. It is really a pleasure to be here, and also I'm really happy that I'm speaking to you and all of your audience who will be with me for this 20-25 minutes of journey. And I hope that I'm able to, keep the excitement on, and more people read the book. Given a brief, I am basically a market entry strategist. If you ask me in a very simple language, then I would say that I am a business consultant. The only difference is this: I consult businesses and I also implement them. And I am a FMCG expert. This is my full-time work. So this is how people know me. On the other side, I am also an author for the book Peopleonomics. So as far as my, you asked me about my, to share me about the journey as an author. तो जर्नी का मतलब तुम सफर के बारे पूछ रहे हो मेरा. बिल्कुल सर. कब आपने शुरू किया, कब आपके माइंड में वो पहला थॉट आया कि नहीं अब मुझे लिख लेनी चाहिए वो? तो कौन सा सफर, SAFAR या SUFFER? सर बेसिकली सफर. Actually, honestly speaking, for an author both these are applicable. हम सफर भी करते हैं और हम सफर भी करते हैं. तो सफर तो देखो ऐसा है कि I am writing was something which was embedded into me long time ago, and I still carry this passion of mine because I still love using the pen and the paper. So I'm not a very digital guy, and I have that fountain pen जिसमें ink डाला जाता है. So I love to use those pen. I've got a selection of those. So that itself says, writing is there in me for a long time. Or I have been maintaining diaries since I was in class, I think 8 or 9. अभी तक वो डायरी रखी हुई है मेरे पास. So as far as the spark or the initiation is concerned, it is something which is from the time I'm born or from the time I've started knowing myself, it is there with me. But talking in terms of a serious author is something which started only about 8 to 10 years ago. So as far as my journey is concerned, I think as a serious author, I started working from about last 8 to 10 years. This 8 to 10 years maximum was into the thinking process, because until and unless we cannot think, we cannot write. I am a small time, the basic thing from where everything started was when I took seriously into the blogging platform. Now, unlike other people, I do not blog everywhere. I'm a very serious player and I blog only on LinkedIn. So from 2015 or 16, I think 16 maybe, I have been writing exclusively on LinkedIn. I have about 70-80 articles published there. These are all on marketing and sales, and some of it is on values and principles.
तो दिस इज वेयर द थिंग स्टार्टेड. एंड एक्चुअली ये बुक जो पीपलोनॉमिक्स है, ये एक ब्लॉग लिखा था मैंने एक जमाने में, आई थिंक 2016 या 17 में. तो वो ब्लॉग जो था ना, इट यू नो समटाइम्स व्हेन यू स्टार्ट डूइंग सर्टेन थिंग्स, देन द थिंग्स स्टार्ट अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ यू. तो out of us suddenly out of my mind a matrix came out, and when I published it, then I found that यार इस चीज में कुछ तो चीज है जो you know it can be developed further, and that is where you know I took this writing very seriously, because मुझे लगा कि अगर मैं इसको और डेवलप करता हूँ और मैं इसके ऊपर काम करता हूँ, तो शायद आई विल बी एबल टू हेल्प मेनी पीपल टू यू नो टू सी देयर करियर पाथ्स वेरी क्लियरली. तो दैट इज वेयर आई स्टार्टेड. अब हमने जब चालू किया तब समझ में आया कि राइटिंग इज नॉट इजी. तो आई स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट 1 month, यू नो जैसा होता है ना, जोश में लोग स्टार्ट करते हैं. तो मैंने भी जोश में स्टार्ट किया. And within a month I realized कि भैया this is not something which I can do, because the amount of dedication, devotion which is required to write a book is immense. And the problem is that मेरे डिक्शनरी के अंदर dedication, devotion है ही नहीं. तो वो मेरे लिए काफी difficult और काफी challenging thing था. But you know then there are certain things, certain forces which compel you to do things because of the very reason you know that they have conceptualized themselves in your brain. तो मैं पढ़ता भी बहुत हूँ. उस समय मैं एक किताब पढ़ रहा था, A Whack on the Side of Your Head, and I think मतलब I'm not remembering the name properly. I think it was the A Whack on the Side of Your Head. उस पर एक लाइन आई थी कि आइडिया जो है ना, वो एक बहुत सेक्रेट चीज है. वो हर एक आदमी को नहीं आता है, लेकिन जब वो आइडिया किसी के दिमाग के अंदर आ जाता है, तो जिस आदमी के दिमाग में वो आया है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो उस आइडिया को कंसीव करे, और वो आइडिया उस इंसान को एक टाइम देती है जिसमें कि हम उसको कंसीव कर पाए. अगर आप और मैं वो नहीं कर पाते हैं, तो वो आइडिया जो है कंसीव होने के लिए किसी और के दिमाग में जाएगा. तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. अब आइडिया इज नॉट फॉर सम पीपल, आइडिया इज अ वेरी सिंपल थिंग, इट कम्स एंड गोज. बट देयर आर सर्टेन आइडियाज, व्हेन दे आर वर्कड इन द राइट वे, they can change the course of human race. This is something which came into me, और मैंने सोचा कि अगर ये आइडिया मेरे पास आया है तो मैं ही इसको कंसीव करूंगा. एंड दैट इज वेयर माय स्ट्रगल स्टार्टेड. तब मैंने ले लिया कि एक कसम ले ली कि आई एम गोइंग टू यू नो जो बुक मैंने स्टार्ट किया उसको मैं कंप्लीट करूंगा. And it was in a 5-year journey. In this journey, I wrote the book 4 times. जब मैंने पहली बार किसी को ये किताब पढ़ाई, तो उन्होंने कहा यार ये किताब एकदम नेगेटिविटी से भरती हुई है. तो मुझे पूरा उसका यू नो स्ट्रक्चर बदलना पड़ा. एंड लिखते बहुत कुछ सीख गया. एंड आज मैं बहुत खुश हूँ एक चीज को देख के कि जब भी कोई मेरी किताब पढ़ता है, उसमें जो चीज बाहर आई है वो ये आई है कि जो रीडर है ना, वो बिल्कुल कनेक्ट कर लेता है किताब के साथ. तो आई एम वेरी हैप्पी कि जो इतना मेहनत गया है, जो इतना यू नो हमने क्या कहते हैं उसको, हार्ड वर्क किया है, उसका अब रिजल्ट आ रहा है. सो द जर्नी हैज बीन वेरी एक्साइटिंग एंड वाज फुल ऑफ लॉट ऑफ लर्निंग. Sir, as we know that the book is released and it's performing really well on Amazon, I just saw. But you know sir, after listening to this podcast, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस बुक को खरीदना चाहेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो उस बुक को पढ़ना चाहेंगे. So from a reader's perspective, what they can expect from this book?
आप कुछ अगर इनसाइट शेयर कर दें हमारे रीडर लिसनर्स के साथ। गौरव, ऐसा है कि व्हेन आई रोट दिस बुक ना, मेरा एक ऑब्जेक्टिव काफी क्लियर था कि मैं लोगों को एक ऐसा दृश्य दिखाना चाहता था जिससे वो अपने जिंदगी के बारे, अपने कॉर्पोरेट लाइफ के बारे बहुत अच्छी तरह स्पष्ट रूप से वो समझ सके कि वो कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं। क्लैरिटी दे एकदम क्लैरिटी में। बट जब मैंने किताब पब्लिश हुई और किताब के रिव्यूज आने चालू हुए तो मुझे पता चला कि ये सिर्फ यही काम नहीं कर रहा है कि लोगों को एक दिशा दे रहा है। ये एक मैं खुद सरप्राइज हूँ। लोग पढ़ते हैं और कहते हैं सर मैं बहुत इंस्पायर्ड हो गया आपकी किताब पढ़ के। तो there was an element of inspiration, but I never thought कि people will be so much inspired and revived that they would like to restructure their life according to the guideline given by the book. So coming back, यह क्वेश्चन भूल गया मैं, क्या था? सर माय क्वेश्चन वाज कि आप अगर बुक का कुछ इनसाइट शेयर कर दें, लाइक व्हाट अ न्यू रीडर कैन एक्सपेक्ट जो भी इस बुक को खरीदेगा या पढ़ना चाह रहा है वो। ओके, गिव अवे क्या होगा, लेसन्स क्या है? ओके, राइट। जी, इस किताब को सी दिस क्वेश्चन इफ आई हैव टू आंसर इट, देखिए हम जब भी अपनी एकेडमिक्स में पढ़ते हैं, एकेडमिक्स में क्या होता है कि हमको थ्योरीज बताए जाते हैं, प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, हम उस फॉर्मेट में ही काम करते हैं और जो भी क्वेश्चन एंड आंसर पूछा जाता है, जिसके ऊपर हमको इवैल्यूएट किया जाता है, वो सब उसी चीज के अंदर वी आर इनटू अ क्लोज बाउंडेड बॉक्स, उसके अंदर ही जो हो रहा है। नाउ अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल जब अपना एकेडमिक कंप्लीट करता है वो आता है आउटसाइड वर्ल्ड में। जब वो आउटसाइड वर्ल्ड में आता है तो क्या हो जाता है कि बहुत आउटसाइड फोर्सेस काम करती हैं, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल का करियर बहुत हेवीली इम्पैक्ट होता है। किताबें में जो पढ़ाई है वो सब हम इस्तेमाल तो करते हैं, बट व्हेन यू गेट इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मैनेजिंग पीपल बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। नाउ अल्टीमेटली हम जब व्हेन वी टॉक अबाउट आवर सक्सेस, people who have been very successful in their career, very successful in their life, एक चीज पे आ जाती है सब कुछ। एंड बिलीव मी गौरव, दिस इज एप्लीकेबल फॉर मी, दिस इज एप्लीकेबल फॉर यू, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट। फाइनली इट इज ऑल अबाउट पीपल मैनेजमेंट। इफ यू आर एबल टू मैनेज योर पीपल वेरी वेल, you will shine. So when you read this book, you will understand पहले आप कौन है। Okay, it is not the designation or your qualification, you leave that aside. It will only give you a clear picture कि आप कौन। दूसरा चीज आपको जो पता चलेगा, जो बहुत क्रिटिकल है इससे, कि आप किनके साथ अपना टाइम व्यतीत करते हैं जब आप काम कर रहे हैं। अगर आप की एक एम और एम्बिशन है कि भैया मुझे एक सीईओ लेवल तक पहुंचना है, लेकिन आप एक ग्राउंड लेवल आदमी के साथ या ग्राउंड लेवल सर्कल में हैं, तो आप ग्राउंड लेवल में ही रहेंगे। आपको वो सर्कल चेंज करने के लिए बहुत जद्दोजहद, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज द काइंड ऑफ expertise and skill which is required for the next level and the next level and the next level is very different. So this book what it does, it tells you clearly कि आपको किन टाइप के लोगों के साथ रहना है, और ये आपको ये भी बताती है कि आपको किन टाइप के लोगों के साथ नहीं रहना है। तो you can see a path and you can classify the people with whom you are working and you can select, okay, this person is the person who is going to help me in these kind of things, so I am going to associate with him. अच्छा गौरव, एक चीज पूछूं आपको? जी बताएं। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स सुना है आपने कभी? हाँ सर, सुना है। ये एक ऐसी चीज है
जिससे कोई ऑर्गेनाइजेशन आज तक बच नहीं पाया है। बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन, छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन। छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है, 1 या 2 लोग होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ती हैं, जैसे लोग आ जाते हैं, पॉलिटिक्स बोल के चीज चलने लगती है। अब ये होती कैसे, कौन करता है इसको? क्या आप इसमें शामिल हैं या आप अननोइंगली पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये सब चीजें जो है ना, ये आपको किताब बहुत क्लियरली बताएगी। मैंने कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स को काफी साइलेंट रखा हुआ है किताब के अंदर, बट जब किताब पढ़ते हैं लोग तो उनको समझ में आता है। So it will tell you, and these are the few of the things we can tell you. बाकी देखो कैसा है कि किताब बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप किताब को उठा के पढ़ोगे, I can bet on one thing, आप उसको रख नहीं पाओगे। I have got certain feedback where people have said that when they started reading the book, they did not keep it till the time it is not finished. In fact, it's written on the cover as well. I have seen that. Okay. Yeah. So sir, like जैसा आपने बताया कि बहुत लोगों के रिस्पॉन्सेस है कि उनको इस बुक ने काफी इंस्पायर किया है, बट व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट ऑन दिस टॉपिक? Like what inspired you to basically write Biblionomics? Because you could have written something else, you could have chosen some other topics as well, right? But आपने यही टॉपिक या यही सारी चीजें क्यों पॉइंट आउट की? Like what was your inspiration behind that? Again, कैसा है गौरव, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि there are certain things which the cosmos does, जो आपको कंपेल कर देती है वो चीज करने के लिए, चाहे वो कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, राइट? जैसे कि आप एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट भी है, ये आपके पीछे भी एक इंस्पिरेशन रहा होगा जिससे आपने चालू किया है इसको। बट एट द सेम टाइम व्हेन वी स्टार्ट समथिंग एंड व्हेन वी रन समथिंग, बहुत फर्क होता है। रनिंग करना तो बहुत डिफिकल्ट है। तो उसी तरह मैंने जब किताब चालू की तो बहुत इंस्पिरेशन से चालू की, बट जब मैं इस किताब को स्ट्रक्चर करने के लिए कोशिश कर रहा था, then I struggled a lot, and it was when you try to do something and you are not able to achieve the goal, what you do is you give up, हम छोड़ देते हैं। तो मैंने भी छोड़ दिया था, बट जैसे मैंने इस किताब को छोड़ दिया और मैं अपने रेगुलर ड्यूटी में रिज्यूम करना स्टार्ट किया, मैंने बोला चलो छोड़ो ये सब, अभी अपने करियर में फोकस करो। And trust me, this is what I did exactly. But when the idea came to me, थोड़ा लिखने के बाद जब मैंने रख दिया और मैंने अपने लाइफ को रिज्यूम की, तब I was shocked to see कि मैं जो लिख रहा हूँ और जो मेरे सामने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे हैं, it is bang on. मतलब मतलब मुझे दिखाई दे रहा है मेरे सामने। आई एम गिविंग अ लाइव एग्जांपल, अ पर्सन हु इज अबाउट 45-50 years of age, okay, he once upon a time he was a very good performer। ठीक है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। हाँ, वो एक सीट में बैठा है और वो उस सीट में फेविकॉल के जैसे चिपक गया है। जो बंदा एक जमाने में बहुत बड़ा परफॉर्मर था, पता नहीं क्या हो गया उसके लाइफ के अंदर कि वो परफॉर्मर से सर्वाइवर में आ गया। सर्वाइवर का मतलब क्या हो गया? जो बंदा परफॉर्म करके अपने करियर को चला रहा था, वो आज करियर को बचाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए दूसरे लोगों को सैक्रिफाइस कर रहा है। समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूँ? जी। मतलब there are certain people who will screw anybody to secure their places, and I could see him doing it. Then I could also see the person who is a victim of it. अब आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जो उनको करने का मन नहीं करता, बट वो फिर भी करते हैं क्योंकि यार जॉब है, बचानी पड़ेगी। बिल्कुल। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, बिल्कुल इसके खिलाफ। See, I have worked for about 3-4 companies for a considerable long time, and in all this company I had a very thrilling and a very eventful career, and I was a very tough person as far as
मतलब क्या कहते हैं ना कि बॉस के लिए अगर कोई एम्प्लॉई डिफिकल्ट हो जाता है तो वो डिफिकल्ट में मैं आ जाता हूँ, और उसका कारण ये था कि हम हमेशा जहाँ पे भी काम कर रहे थे परफॉर्मर थे। तो इनडायरेक्टली स्पीकिंग मैंने आज तक अपने किसी भी बॉस से आई वाज नेवर अफ्रेड और नेवर स्कैर्ड। व्हाई? बिकॉज आई वाज डूइंग द राइट थिंग। बट देयर आर अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल डू एनीथिंग, सही है गलत है, डोंट केयर। तो मैंने अभी ये चीज मैंने किताब से एलिमिनेट की हुई, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि विजय आप ये लिखोगे तो शायद कंट्रोवर्सी हो जाएगी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। समटाइम्स मतलब मैं जो देख रहा था, मैं ये भी देख रहा था कि एक कुछ लोग हैं वो चापलूस बन जाते हैं। काम करो या ना करो, लेकिन चापलूसी करो। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हां डेफिनेटली। वो क्यों कर रहा है? वो परफॉर्मेंस कुछ नहीं उसमें सिर्फ एक चीज है, यार मुझे मेरी जॉब बचाना। तो उसके नाउ सो द थिंग इज कि आई कुड सी दिस व्हाई इट इज हैपनिंग। सो आई वाज थिंकिंग कि अगर मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट में लिखता हूँ और इसको मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं तो उनको शायद एक इंसाइट, एक रास्ता दिखेगा कि उनको पहले तो वो क्या है उनको पता चलेगा, किसके साथ है वो पता चलेगा। जब ये दोनों चीज क्लियर हो जाएंगी तो उनको समझ में आएगा कि मुझे करेक्टिव एक्शन कौन से लेने हैं। They will get the reality of it. And that is where मेरा इंस्पिरेशन था कि मुझे जितने मैक्सिमम लोगों को मैं इस चीज के बारे में बता सकूं मैं बताऊं। अब देखो कैसा है कि मैं जानता हूं कि हर एक आदमी जो ये किताब पढ़ेगा, इन्फ्लुएंस या वो चेंज जो वो लाना चाहता है मे बी वो नहीं लाएगा, उसके थॉट में वो रहेगा। बिकॉज सी गौरव, अंडरस्टैंड वन थिंग, सेइंग समथिंग एंड डूइंग समथिंग आर माइल्स अपार्ट। बट I have written this book for that few audience of mine who will bring that change, and I'm sure they will. So I hope that it reaches maximum. Most people read the book, they get the insight, and also have the courage to really change their life in the way they want it. So that was my inspiration. What I personally felt sir कि जैसे बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे पॉडकास्ट पे ऐसे लोग आते हैं, मैं ऐसे लोगों से इंटरेक्ट कर पाता हूँ जो कि बियॉन्ड द फाइनेंशियल थिंग उसके ऊपर उठ के कुछ सोचते हैं, समथिंग फॉर द सोसाइटी। एंड आई एम रियली फीलिंग ऑनर्ड कि आप हमारे शो पर आए, बिकॉज जो चीज़ें आपने लिखी है आपको भी पता है कि बहुत ऐसा नहीं है कि एक मासस को चीज़ें अपील करेंगे, राइट? बट स्टिल आपका ये एक्सपेक्टेशन है कि जितनों को भी करे, अगर उसमें से कुछ लोग भी चेंज हों तो दैट्स रियली द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एंड दैट्स ट्रूली कमेंडेबल सर। थैंक यू सो मच गौरव। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑफ दिस पॉडकास्ट वुड बी सर, जैसा आपने बताया कि आपके बहुत सारे आपने इसमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस ये सारी चीज़ें भी देख के और बुक में लिखी हुई हैं, बट बिसाइड दैट आपने कोई और भी रिसर्चेस की हुई हैं या फिर इट्स ऑल अबाउट अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, या फिर आपका जो माइंडसेट है, जो आपकी सोच है इस बारे में है? ओके गौरव, काफी पेचीदा क्वेश्चन है ये, मैं इसको आंसर करूंगा भी नहीं भी करूंगा। पहले तो जितने भी मैंने एनेक्डोट्स लिखे हैं इस किताब के अंदर सारे रियल लाइफ है, एंड आई वुड नॉट लाइक टू से दैट ये मेरे साथ बीते हैं, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से दैट बहुत लोगों के साथ ये होता है। नाउ सी गौरव, द थिंग इज व्हेन वी डू रिसर्च आर बेसिकली ऑफ टू काइंड्स, देयर आर वेरियस काइंड। मेरे हिसाब से मैं दो टाइप में बोलना चाहूंगा। फर्स्ट इज व्हेन वी टेल द रिस्पोंडेंट यू आर अ पार्ट ऑफ अ रिसर्च। द मोमेंट हम एक रिस्पोंडेंट को ये बोलते हैं कि तुम्हारा हम क्वेश्चनियर भर रहे हैं, वो एक अननोइंगली एक बायसनेस हो जाता है। Okay, and this happens with everything, biasness हो ही जाती है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। And there is another kind of research which I did for this work, for this book, and I call this as a covert research. मतलब you are conducting a research without telling the other person that he is a part of research. So when you do this, what happens?
दे स्पीक, दे दिल से बात करते हैं वो, कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो अगर आप किसी को बोलते हैं मैं आपका रिसर्च कर रहा हूँ, तो वो शायद वो छुपा देगा। लेकिन मैंने जब ये रिसर्च कंडक्ट की, तब मेरे मतलब जैसे कि मैं किसी के साथ बैठा हूँ and I know that I am stuck somewhere in the book and I need an answer to it, so I start speaking to him, and that is where he starts opening up, and वैसे मुझे मतलब बहुत सारी स्टोरियां जो किताब के अंदर हैं, वो स्टोरीज जो हैं वो इस तरह आई, मतलब उन्होंने सिर्फ स्टोरीज कहा है, तो स्टोरीज को इंटरप्रेट करके पूरे बुक के साथ लिंक करने वाला काम मैंने किया। So this is how I conducted the research, but yes, it is completely a research work। ऐसा नहीं है कि दिमाग में आया लिख दिया मैंने,